Welcome friends once again for the physics lecture. We are hereby once again having a short revision of topic 1. I am also tired of revising one topic again and again, but due to the student wish I am here to introduce you in front of you some important questions. Okay? So today I will purely speak on what are the important points for the rounds, subjective, and some MCQs? Are you getting my point? So, as our topic 1 is considered, today I will take topic 1 practice, tomorrow I will take short revision of topic 2. So, for topic 1, first you have to go with Q is equal to any quantization, है ना? Quantization. So Q is equal to any comes with charges, charge calculation. What it comes with? Charge calculation. That you are knowing. If the body is giving, it will be having positive charge. If the body is accepting the electrons, it will be having negative charge. Okay? But will you open that window so that there will be some light on my face? I think. Curtain, you open curtain so that we will have. Okay, good. That one, okay, fine. ठीक है. That's all. एवढा दिसलं तरी बास झालं. So quantization of charge, you have to practice on problems. Problems on that. Problems. Number 1 type, calculating number of electrons transferred. आठवत है ना? And B, calculating charge on the body. This is one. I hope you are able to understand that. I have filled it with the ink. This is new marker. There is no problem. But somewhere the ink was not there. Tomorrow I will bring my markers. जे लिहिल्यावर पुसलंच जात नाही असे मार्कर घेऊन येतो एकदम ब्राईट. So this is Q is equal to N. Secondly, you have to emphasize. I know that काही दिसत नाही. आपण मार्कर चेक करूया. You have to emphasize on properties, some or remaining properties. Which properties? Additivity, then conservation of charge. You are doing that now? There will not be any problems on additivity, conservation. 1 mark question. Here it will be coming 1 mark. Here also it will be coming either 1 mark or 2 mark. समझ देगा? Either 1 mark or 2 mark. Not more than that. Those who are sitting for CET, they have to solve the sheet given by me. Sheet given on 26. म्हणजे बघा मी सगळ्यांना न्याय देतोय. I am giving justice to each of you. So for CET fellows, they have to solve the sheet given by me. Calculating charge. याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्यांना ग्लास, सिल्क, amber, are you knowing? Rubber, polythene. अजून काय राहिलं? त्याच्यावरती चार्ज शोधून काढायचे. पेयर्स अँड चार्जेस. आज सगळ्यांनी गुगल करा. गुगल म्हणजे कुठेतरी शोधा. टू सर्च इज गुगल. टू गुगल इज टू सर्च. हे एक्स्ट्रा करून ठेवा. Which type of charge resides on glass? Which type of charge resides on silk, amber, wool, cat's fur? हे सगळे बघून ठेवा.
then your charging will be half done. त्याच्यानंतर काय करायचं, important is conduction and induction. Read and make points. What you have to do? Conduction, one charged body, one uncharged body. आठवते ना सगळं, बोर्डवर पण दाखवलंय. If we will connect them, then the electrons will be transferred from one body to another body. So whole body will be now considered as one body. And now once we will detach them, then first before detaching काय होणार, charge will be uniformly distributed, uniform distribution of charge. After detaching, suppose they are similar, then Q is the charge. After detaching, Q by 2, Q by 2. Okay, so this type of problems you have to look for. Problems कुठल्या टाइपचे लिहून देतोय, either conduction or induction. Two bodies, समोर जातो, two bodies, initial charge, initially having charge say Q, है ना, then connected, then detached, है ना, final charge. This is the link. This type of problems you may get in CET sheet also. तुम्ही काय करायचं, CET sheet मध्ये जे MCQ आहे, the same MCQs you will use for your NCERT MCQs practice, so that you will have time management in that. उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकोगे और वही MCQ का आपका प्रैक्टिस यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के लिए हो जाएगा, तो आपको दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा. Third thing, at last I will tell you that is common thing about the study journal. Okay, so this all no problem. आणि एकदा वाचून ठेवा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. पण याच्यावर जास्त क्वेश्चन्स येत नाही, but if some question will come, you must be knowing what is electroscope. इलेक्ट्रोस्कोपला काही नसतं, तुम्हाला सांगितलेलं आहे, एक चार्ज they are giving and the leaves are there. Once charge is there on both leaves, सेम टाइप का चार्ज आएगा ना, तो लाइक चार्ज रिपेल इच दैट, तो वो लीव्स ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे. दैट इज आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो भी करना चाहिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चार्ज. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी क्वेरी? ओके, फाइन. Now hence onward my lectures will not be of 1 hour, 2 hour. They may be of 10 minutes, 20 minutes, short videos. They will be in the form of short videos, so that you will have the summary of that. उतना ही देख के आपका प्रैक्टिस चालू रखने का. जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ. आई सजेस्ट यू, जिनको हो सके वो स्कूल में आके अपना प्रैक्टिस चालू करें. मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी. मैं तो करते रहूँगा, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, क्या क्या करने का है. तो उसमें कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम आएंगे? कैलकुलेटिंग चार्ज, जिन्होंने अभी तक लिखा नहीं उनके लिए बोल रहा हूँ. कैलकुलेटिंग चार्ज, बाद में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकते हैं. ज़्यादा आपको यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्शन वगैरह नहीं होगा, Q इक्वल टू एनी से थोड़ा सा कर सकते हैं. A body gives these electrons, how much will be the charge developed on the body, you can calculate. Okay, then units of charge, very important, you might have practiced for that. Coulomb, so 1 micro coulomb कितना आता है? 10⁻⁶ coulomb. 1 मिली कूलम से चालू करते हैं. आपको भी दिखना चाहिए ना ठीक से, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ. 1 मिली कूलम कितना आएगा? 10⁻³ कूलम. देन माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम. देन नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम. देन पिको कूलम कितना? 10⁻12 हो गया. तो 1 कूलम कितना बन जाएगा? इसका उल्टा 1 कूलम कितना बन जाएगा? 10⁻³
मिली कूलम एंड वाइस वर्सा, सेम ऐसा कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आ सकता है। क्या हम आगे चले बेटा? चलो वेट फॉर इट, हो गया? आई होप आपको दिख रहा है ठीक से। इसको भी खोलते हैं थोड़ा सा। मालूम है मेरे को, थोड़ा सा ट्यूबलाइट का ये आएगा, ठीक है, लेकिन दिखने में भी अच्छा दिखता है। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे आएगा। ये 1 मिली कूलम है, 10⁻³ कूलम। ओके, ठीक है, मैं इसमें देख देख के लिखता जाऊँ, वहाँ पे नहीं आएगा। तो बेटा अभी दिस वन everything has completed. Second, next part is of Coulomb's law. तो Coulomb's law में क्या है? पहला उसका स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट प्लस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बस। तो वो क्या लिखा है हमने? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो K क्या है? 1/4πε0, उसका वैल्यू कितना आता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये याद रहना चाहिए आपको। फिर भाई वहां पे ही लिखा मैंने, ठीक है, आदत से मजबूर। ये हो गया बेटा। बाद में कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिया है, सब लोग को पता है या नहीं है? ये 1 है, ये 2 है, इसको R1 दिया, इसको R2 दिया, है ना बेटा? तीसरे चौथे बार दिखा रहा हूँ मैं सब। तो ये Q1 है सपोज, ये Q2 है। अगर ये प्लस प्लस है तो क्या करेंगे? रिपेयर। माइनस माइनस है तो भी रिपेयर करेंगे। तो रिपेयर करेंगे तो कैसे आएगा फोर्स? एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा? F12। तो F12 क्या आता है आपका? ऑन 1/2। F21 क्या? ऑन 2/1। बोथ क्या आएगा? रिपल्सिव आएगा। तो भी किसी का कौन सा भी फोर्स लेना है तो क्या लेना है? F12 अगर लिया रिपल्सिव बताना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन R लेने के लिए ऑन 1/2 बताया तो 2 से 1 आ रहा है, तो ऐसे जाएगा बेटा। तो क्या हो जाएगा? R21 है ना बेटा? और ये अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा? R12। तो ये 12 है तो यहाँ पे लिखोगे R21 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू R21 कैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और R21 वेक्टर आपका क्या है? R21 अगर है तो आएगा, हाँ, R21 दिखाता हूँ। R21 मतलब ये यहां से है, ये यहां से, मैं यहां से चला गया, तो क्या हो जाएगा? R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1। तो R21 ऑलवेज R1 माइनस R2 और R12 उल्टा है, R2 माइनस R1। गेटिंग माय पॉइंट? ये सिंपल। खाली ये अगर अट्रैक्टिव है तो उल्टा है, अट्रैक्टिव है तो ये यहाँ पे जाएगा, तो वहां भी, तो ये कहां पे लगेगा? रिपल्सिव। आपके पास नोट डाउन करके रखो कि आपको इन सीईटी प्रॉब्लम सॉल्विंग आल्सो, इन जेईई प्रॉब्लम सॉल्विंग आल्सो समटाइम्स दिस हेल्प्स अस। तो मैं ऐसा ये नहीं करता हूँ, सबके लिए मैं इधर लिख के रखा हूँ, पहले मैं अपने लेक्चर में बताया। अभी अगर अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही दिखाता हूँ, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो ये इधर जा रहा है मतलब R12 लिखूंगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? F12 will be K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। समझ में आया क्या? तो अगर ये रिपल्सिव है तो F12 के लिए इधर R21 आएगा और अट्रैक्टिव तो सेम आएगा।
ये आएगा एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज्यादा नहीं आता लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। समझ गए? आपको क्या करना है? अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इफ यू वांट टू अर्न आउट ऑफ आवर मार्क्स, क्या मैं इसको हटाऊं? हो गया? लिखो बेटा फास्ट। अगर आपको पूरा मार्क कमाना है तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन पता होने चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड से ए। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, दिख रहा है बेटा? हाँ, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, वो भी मालूम चाहिए आपको। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है स्क्वायर और चौथा है रेक्टेंगल। तो किसी भी पॉइंट को करना है तो आपको क्या यूज करना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। F net will be F1 plus F2 plus F3 and so on. Vector addition. Net force will be, चला रहा बेटा? तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों के लिए, अभी मैं ऐसे नहीं करने वाला। इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता देता हूँ। F अगर लिखा आपने K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर, E कितना लिखिएगा? F अपॉन Q। तो यहाँ पे Q1 Q2 लिखा है ना, उसमें से 1 विल बी टेस्ट चार्ज, है ना? टेस्ट चार्ज कौन सा टेस्ट चार्ज रहेगा? उसको हम टेस्ट चार्ज पकड़ेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें याद रखिए। तो ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो F समेशन कैसे लिखेंगे? समेशन F विल बी, हाँ बेटा बोलो, F1 प्लस 0 नहीं बेटा, F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन। समझ गए? फॉर इक्विलिब्रियम, इफ इट इज इक्विलिब्रियम तो कितना करना है? अभी आपने बोला, क्या बोला आपने? इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा? F ने कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इक्विलिब्रियम में अगर तो आपका F नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एटलीस्ट लिख के रखो, एटलीस्ट 20 प्रॉब्लम्स ऑन सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो मैंने आपको पहले ही दिया है, बराबर? आपके बुक में भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, सब देख के आपको चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का काम करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा आपको भी ठीक से इसका ख्याल रखो। कूलम्ब्स लॉ और एक टाइप का आपको करना है, वो भी बता देता हूँ। कौन सा करना है? ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो थर्ड चार्ज, so where to keep third charge so that क्या हो जाएगा? system will be in equilibrium। तो आपको मालूम है ये एक, दूसरा क्या आएगा? प्लस माइनस, तीसरा आएगा माइनस माइनस, चौथा आएगा माइनस प्लस। तो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस ये सेम रहेगा क्योंकि बोथ विल रिपेल ईच अदर। और ये वाला है और ये वाला है, दे बोथ विल बी सेम, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका काम आपको करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके ऊपर आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद में आपको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो थर्ड कंसेप्ट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ये स्केलर है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, सिंपल लिखना है ना। यहाँ पे ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने चौथे पांचवें बार बता रहा हूँ, ए मतलब क्या? एरिया वेक्टर। हर चैप्टर के लिए ऐसा ये नहीं होगा, अभी टाइम है इसलिए ले रहा हूँ। हाँ, तो पाई कैसे लिखते हैं हम? ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? थीटा क्या है आपका? एंगल बिटवीन, हाँ एंगल बिटवीन ई एंड ए।
फ्लक्स का डेफिनेशन, फ्लक्स का क्या है, फ्लक्स का डेफिनेशन बताना पड़ेगा बाद में, SI यूनिट एंड डायमेंशन। गेटिंग माय पॉइंट? फ्लक्स ऐसे भी आता है, कैसे आता है ये दिखा। यहां पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर्स नहीं दिया तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और दूसरा दिया आई कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, तो उन लोगों का डॉट प्रोडक्ट आता है ना आपको, ax bx प्लस ay सॉरी ax bx बराबर प्लस ay by प्लस az विद साइन, ax अगर 1 है bx माइनस 1 है तो उनका माइनस है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो 2i कैप और यहाँ पे i कैप, 2 1 2, तो 2 1 2, 2 ही आएगा, बाद में वैसे ऐड करके स्केलर क्वांटिटी आपको मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो फ्लक्स का यूनिट कितना आएगा, ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो यूनिट कितना आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूनिट आपको मालूम होना चाहिए, फोर्स का मतलब न्यूटन ही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ऑल। नाउ last but not the least, that is the Gauss theorem and its application. Everybody have understood the Gauss theorem? Is there any problem? Is there any doubt? If it is there, then watch my lecture. अभी नहीं बताया बोले फिर से Gauss theorem, तो Gauss theorem भी पढ़ाता रहूँगा, मेरे लेक्चर में पूरा मैंने बताया हो, आपको चाहिए तो आप उसका पहले रोटरी एकेडमिक पे थे मेरे लेक्चर, वहाँ पे देख सकते। अगर आपके पास नहीं है थोड़ा सर्च मारो, आप सब्सक्राइबर हो ना, अपने एक्सआई जेई के भी सब्सक्राइबर हो, 54 सब्सक्राइबर्स, स्टूडेंट नंबर 46, सब्सक्राइबर 54, हाउ इट इज, आई डोंट नो, अच्छी बात, जितने देख रहे अच्छा कल्याण हो सकता। तो इसके बाद में क्या करना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, समझ गए? इससे आगे इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, समझ गए? आर गेटिंग माय पॉइंट? तो आप रिवीजन कर सकते हो, कितनी दफा बोला है, और इसमें क्या ऐड करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, कौन कौन सा, डेरिवेशन कौन कौन सा, हाँ एक्सियल जो कल आपने किया है, मैंने करवा के लिया था, इक्वेटोरियल, ये दो डेरिवेशन, तो सीधा फॉर्मूला इसके लिए एट एनी पॉइंट, मालूम है ना, एनी पॉइंट के लिए खाली फॉर्मूला याद रखना है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, वो आता है ना, वही फॉर्मूला याद रखने का काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। बीच में कोई दिक्कत है, डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू, आपको भी देख रहा हूँ मैं। तो टिल टुमारो, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।